Good morning, students. I am Rupesh Kumar, science teacher at Loyola School. Today, in this video, we will study Chapter 6 Life Processes. In this chapter, you can see here are some examples of living things and here non-living things. As we know that the living things show some of the movement, but non-living things does not show any movement. So we can easily recognize that living things are alive and non-living things are not alive. In living things which are alive, we can see the some of the examples like dog is running, cow chewing cud. When the dog is running, we can easily say that the dog is alive. Now, one more example, that is the cow chewing cud, means the cow is eating grass. So we can easily say that the cow is showing his mouth movement. Therefore, we can say that the cow is alive. Now, one more example is there, that the man is shouting loudly on the street. So, if the man is shouting, there also some movement is shown. So, therefore, we can say that where there is a movement, so that particular organisms are alive and we just call them living beings. Now, for example, if the dog, the man, and the cow asleep, so what will happen to their body? If their body goes into the rest, so what we will say, whether that particular living beings are alive or not. So obviously we will look for the breathing. So when we look breathing, so man is breathing, cow is breathing, and dog is also having a breathing. So we can easily recognize their breathing process is taking place, so we can easily recognize that they are alive. But what about the plant does not show any breathing process. So how can we recognize that the plant is alive? So we just look for the green parts. So in the plant, if you see the lot of greeneries in a plant, you can see the leaves which are green. So we can easily say that the plants are alive. But what about those plants who has not having a green leaves? Some plants have does not have any green leaves. So obviously we can look for the growth related movement, because we know that the plant move. How they move? Their roots grow, their stems grow. So when their stem and roots grows, then finally we can say that this particular plant is alive. But there are some plants who does not grow, but also we can say that the plant is alive. Some of the plants are there which are not visibly growing, but they are alive. And also some of the animals are there, they can breathe without visible movement. We cannot see that that particular animal is breathing, but they are breathing, and we can say that they are alive. For example, microorganism. When we talk about microorganism, then microorganism does not have any nose like organ, means we cannot see how they breathe, but they are breathing. How they are breathing? We There is no visible movement we can see there. There is a no visible character, their visible growing is shown. So they are alive, but we cannot see. So with this defining characteristics, we cannot characteristics the life. So what I am trying to say, I am just explaining in Hindi that you हम सब जानते हैं कि संसार में जितने भी चीज को आप देख पाते हैं, जैसे कि आप हमने बताया कि पत्ते हरे हैं, तो पत्ते हरे हैं आप कह देते हैं कि वो जीवित है। और
जब एनिमल्स को देखते हैं तो वो मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तब भी आप कह देते हैं कि वो जीवित है। लेकिन हम जब बात करते हैं किसी भी विजिबल मूवमेंट के अलावा अलावा किसी भी चीज के मूव, जब वो मूवमेंट नहीं करता, जब वो ब्रीदिंग करता है लेकिन आपको दिखता नहीं है, तो उस केस में भी वो एनिमल और प्लांट जीवित होते हैं। तो ये सब भी हम सबको नजरअंदाज नहीं करना है, ये सब भी अपना प्रोसेस चला रहा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी चीज एलाइव हैं, तो कहीं ना कहीं विजिबल मूवमेंट के अलावा विजिबल मूवमेंट के अलावा लाइफ में कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम सब एलाइव हैं। और वो कौन सा मूवमेंट होता है? तो वो होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ होता है? छोटे स्केल पर, यानी कि बॉडी के अंदर। और वो हर एक सेल के, हर एक छोटे छोटे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि सेल है, वो हर एक सेल के बीच में भी मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर ट्रांसफर हो रहा है, मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, जो कि हमारा नेकेड आइज नहीं देख पाता। नाउ फॉर एग्जांपल, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। सो दीज आर द इनविजिबल, यानी कि जो हमको नहीं दिख पाता, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो जरूरत है। वो जो मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, जो एक जगह मॉलिक्यूल्स जो एक जगह से दूसरे जगह जाता जाता है, तो वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बिना मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लाइफ नहीं हो सकता। क्योंकि if we ask this question to professional biologists, then they will say yes, in fact viruses do not show any molecular movement in them. now अब हम बात करते हैं वायरस की। बायोलॉजिस्ट भी बोलेंगे कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ को चलाने में मदद कर रहे होते हैं। बायोलॉजिस्ट का कहना है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी लाइफ को चलाने में मदद कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम वायरस की बात करें, वायरस कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता, लेकिन जब वो वायरस सेल को इन्फेक्ट कर देता है, तो वायरस का भी अपना लाइफ प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए हम सब कहते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग है। why they are called living as well as non living? Because they are not, when they are not infecting any cell, when they are not infecting any cell, then finally what the virus is doing, the virus is not doing his life process. When they infect the cell, then finally the virus become alive. So when the virus become alive, then all the life process is goes on. Now, why are molecular movements needed for life? Why? If we have seen in earlier classes that the living organisms are well organized structures. They can have tissue have cell have smaller components in them, and so on. हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, क्योंकि उसके पास टिश्यू होता है, और टिश्यू के अंदर सेल होता है, और सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम सब सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में भी जानते हैं। और इन सब के बीच में भी केमिकल मूवमेंट, यानी कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं, जो कि एक लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी सब्सटेंस है, बहुत ही जरूरी वो केमिकल सब्सटेंस है। Because of this effect of the environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breakdown over time, and if order breaks down, the organism will no longer be alive. अगर ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि ऑर्डर में ये काम कर रहा होता है, यानी कि सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा होता है, अगर कहीं पर भी सिस्टम अगर बिगड़ जाता है, तो वो क्या होता है? हमको बीमारियां हो जाती हैं,
हमारा लाइफ प्रोसेस अगर गड़बड़ा जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा, तो क्या होगा? तो खाना पचेगा नहीं। जब वो खाना पचेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम गड़बड़ाएगा, और लाइफ प्रोसेस अगर गड़बड़ा जाएगा तो एक समय आएगा वो धीरे धीरे खत्म, नष्ट कर देगा उस ऑर्गन को, और धीरे धीरे आप मर जाएंगे। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. चूंकि हर एक स्ट्रक्चर जो है वो बना है मॉलिक्यूल से, जितना भी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का बना है, चाहे वो सेल ऑर्गेनल्स हो, सेल हो, टिश्यू हो, ये सारी चीज में मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है। और ये मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये वो जो मनुष्य है वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, आखिर लाइफ प्रोसेसेस है क्या? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस फंक्शंस विच आर इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म, यानी कि आपस में मिलकर कोई भी मेंटेनेंस फंक्शन को, यानी कि आपके अंदर के फंक्शन को मेंटेन करता है और आपको जीवित रखता है, उसी को हम सब लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोसेसेस की, आखिर प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या आएगा? आखिर प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या आएगा? तो प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या आएगा बताइए, बता सकते हैं आप। डाइजेशन आएगा, खाना को जो पचना है, पहले डाइजेशन आएगा। जब तक डाइजेशन नहीं होगा तब तक आपका एक्सक्रेशन नहीं होगा, यानी कि प्रोसेस के अंदर आपका एक्सक्रेशन होगा। क्योंकि डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, वो आपके बॉडी को एनर्जी प्रदान करेगा। यानी कि एनर्जी जो प्रदान किया, यहाँ पर भी कोई ना कोई मूवमेंट जरूर हुआ, कोई ना कोई प्रोसेस तो जरूर हो रहा है। एक्सक्रेशन होगा, फिर रेस्पिरेशन होगा। यानी कि इतने सारे जो प्रोसेसेस आपके बॉडी के अंदर चलेंगे, ये सारे प्रोसेस आपस में मिलकर, आपस में फंक्शन करके आपके बॉडी को चला रहे होते हैं, आपके बॉडी के हर एक प्रोसेस को चला रहे होते हैं और आपको जीवित रखते हैं। तो इसी चीज को हम सब क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और ये लाइफ प्रोसेसेस एग्जिस्ट, लाइफ प्रोसेसेस एग्जिस्ट, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, EXIST, exist in both unicellular and multicellular life forms। यानी कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो दोनों ही चीजों में पाया जाता है। पूरा लाइफ प्रोसेसेस जो है वो दोनों ही जगह पाया जाता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर यानी कि मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, यानी कि मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ सेल। और मल्टीसेलुलर में मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। यूनिसेलुलर, जब हम बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस एग्जिस्ट इन बोथ, यानी कि दोनों में पाया जाता है, तो यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल में आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, यानी कि डाइजेशन भी हो जाता है, डाइजेशन भी हो जाता है, एक्सक्रेशन भी हो जाता है, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन भी हो जाता है। यानी कि जितना भी प्रोसेस आपके लाइफ में, आपके लाइफ सस्टेनिंग लाइफ, यानी कि आपके लाइफ जब चल रहा है, आपके बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेसेस हैं वो एक ही सेल में भी पूरा प्रोसेस हो जाता है। और मल्टीसेलुलर तो आप जानते ही हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग मल्टीसेलुलर है, सारा ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर पूरे बॉडी को चला रहा होता है और आपको जीवित रखता है। उसी को हम सब क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। तब फिर हम सब यहीं पर क्लास को बंद करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।